morning. I am Anil Agarwal, former Chief Minister of Punjab National Bank. So there is always an anxiety to know what type of notifications will come during the year. And there are various questions raised by you time and again. And for satisfaction of your curiosity, I have made series of videos on various exams. What is the possibility of these exams or notification coming during this year? So I have placed all these videos in a playlist link is available in description box, so you can watch these videos and see about the possibility of various examination notification this year. But it is almost certain that 6 notifications will definitely come, and these 6 notifications are RRB notification, IBPS PO notification, IBPS SO notification, then SBI Junior Associate notification, and SBI PO notification, and IBPS Clerk notification. So these are the 6 notifications that will definitely come, because this is now an annual feature. About all other exams, we may see the notifications, we may not see the notification during 2024. And as and when we will get more information on those exams, we will cover. So the purpose of this video is to draw your attention towards these 6 major exams. So right now we are focusing on IBPS RRB officer, IBPS PO, SBI PO, RRB clerk, IBPS clerk, and SBI clerk. For IBPS SO, I have not started any timetable videos. So for these 6 exams, I am posting daily timetable video. Follow that schedule. Some people understand the importance of timetable, others are not able to understand the importance. Some people are going here and there, trying hit and trial methods, and ultimately they fail. If you want to be successful, you have to be organized. And to be organized, you must plan and execute. And for planning, timetable acts as a savior. So my advice is, right now you should have complete focus on these 6 major exams so that you get the job. Spending your energies and getting the information about various notifications will only take away your time. Unless some definitive information comes, it is not worthwhile to only search for that information. Sometimes we are awaiting a result. Again, spending much of the time in waiting for the result also spoils your time. So my advice is, this is the time, this is the precious time, don't let it go away. Simply focus on study, focus your study for these 6 exams, be victorious, and then decide where you want to go. Some people may like to go for these jobs, some people may like to go other jobs. This is your choice, but you should be very clear in mind. If you are unemployed, first thing is to get the employment. Since these 6 examinations have comparatively higher vacancies than other notifications, the probability of selection is high in these examinations. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में तरह तरह की दुविधा होती है, तरह तरह के प्रश्न होते हैं कि ये नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, वो नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा. और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सीरीज़ ऑफ वीडियोस आपको बना के दी कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अंदर नोटिफिकेशन आने की क्या आज का स्टेटस है. आने वाले दिनों में क्या स्टेटस होगा वो आने वाले दिन ही बताएंगे. और इन सब वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया. प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. आप इन वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो कि कौन कौन से नोटिफिकेशन श्योर हैं जो आएंगे और कौन से नोटिफिकेशन ऐसे हैं जिनके बारे में अभी हमें सर्टेनिटी नहीं है.
6 ऐसे नोटिफिकेशन है जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। पहला है आरआरबी का नोटिफिकेशन, फिर है आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ और एसबीआई पीओ एंड एसबीआई जूनियर एसोसिएट। ये लगभग एनुअल फीचर है और ये आएंगे। तो अगर हम इसके ऊपर अपना जो है ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें कोई ना कोई इसमें से जॉब मिल सकती है। जहाँ तक दूसरे नोटिफिकेशंस का सवाल है, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी कोई सर्टन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो उसकी सिर्फ इंतज़ार करते रहना, उसके पीछे भागते रहना मेरा हिसाब से श्रेयकर नहीं है। इसीलिए हमने जितने भी आपकी क्वेरीज थी उससे संबंधित हमने वीडियोस बना दिए, ताकि आपको आज का स्टेटस पता लग जाए। आने वाले दिनों में जो भी चेंजेस आएंगे वो हम नेचुरली आपके साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लोग रिज़ल्ट की इंतज़ार करते रहते हैं, उसमें काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है। अभी क्योंकि रिज़ल्ट जो आने थे आ रहे हैं, जो आने होंगे वो आएंगे, उस पर भी ज़्यादा टाइम आप मत व्यर्थ करें। अब आपको क्या करना चाहिए, 6 एग्ज़ाम्स को फोकस में ले लीजिए। अभी हम आरआरबी ऑफिसर, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, इन 6 एग्ज़ाम को फोकस में करके डेली टाइम टेबल वीडियो डाल रहे हैं। मेरी आपको सलाह है कि उस वीडियो को रोज़ देखें, उसमें बताए हुए रास्ते पे चलें, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होते हैं, इधर उधर के एफर्ट करते रहते हैं और फिर उनको निराशा हाथ लगती है। अपने आप को एक ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, अपनी दिशा निर्धारित नहीं करेंगे और उसको जो आपने प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, कामयाबी नहीं मिलती है। कई बार हम कुछ भी पढ़ने लगते हैं जो हमें कोई गाइड कर देता है और टाइम निकलता चला जाता है। अपनी प्लानिंग करना, एक टाइम टेबल बनाना, उस टाइम टेबल को फॉलो करना, निश्चित दिशा के अंदर मूव करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए डेली टाइम टेबल वीडियोज़ आप ज़रूर देखें और उसमें बताए हुए रास्ते पर चलें। इससे निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है, आपको भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा कई बार हम इंतज़ार में ही लगे रहते हैं, ये नोटिफिकेशन आ जाए तभी हम तैयारी शुरू करेंगे, वो नोटिफिकेशन आ जाए तब हम तैयारी शुरू करेंगे, और बहुत सारा समय हमारा निकल जाता है। ये बहुत ही प्रेशियस टाइम है, इसको आप यूज़ करिए। टाइम को अपने हाथ से स्लिप मत होने दें, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा। देखो 6 नोटिफिकेशन तो लगभग निश्चित हैं कि आने ही आने हैं, और ये वो नोटिफिकेशन है जहां जॉब मिलने की संभावना भी अधिक होती है, क्योंकि इसमें लगभग और एग्ज़ाम्स के मुकाबले ज़्यादा वैकेंसी होती है। और भी नोटिफिकेशन आते हैं मगर उसमें यूजुअली वैकेंसीज कम होने की वजह से कंपटीशन टफ हो जाता है। तो मेरा मानना ये है, 6 एग्ज़ाम को फोकस में ले लीजिए, इसकी तैयारी शुरू कर लीजिए। जो आईबीपीएस एसओ की तैयारी करना चाहें वो तैयारी कर सकते हैं। उसके टाइम टेबल वीडियोज़ हम नहीं डालते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो टेक्निकल एरिया है, तो बहुत ज़्यादा उस पर मैं गाइड नहीं करता। बीच बीच में कोई वीडियो उस पर डालता हूँ ओवरऑल ब्रशअप करने के लिए। तो इसको आप फॉलो करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।